बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our third video class of week number 4. This is class 7 and the period of the science. In our previous class, we have been completed chapter number 8, simple chemical reactions. In this class, we start our new chapter and the next chapter, chapter number 10, electrical circuits. In this chapter, we discuss about the circuits. Okay. Students, as you know, we use many machines and devices in our daily life. These machines and devices use electrical energy. What is the electrical energy? Electrical energy is the form of energy which made available by the flow of electrical charges through an electrical conductor. Electrical energy is the form of energy which made available by the flow of electrical charges through an electrical conductor. Okay, what is the now the next is the electric current. What is the electric current? When electric charges flow through an electrical conductor, electric current is produced. Okay, what is the electric current? Electric current. When electric charges flow through an electric conductor, electric charges, electric current is produced. Electric current. What is the electric current? When electric charges flow through an electrical conductor, electric current is produced. जब किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. व्हाट आर द इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, द सोर्सेज, ठीक है, थ्रू विच द सोर्सेज और डिवाइसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस. ये वो सोर्सेज या वो डिवाइसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल सेल्स और बैटरी आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल चार्जेस. सेल और बैटरीज जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं. नाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट. Electric circuit. The electric circuit is the path along which electric charges flow.
ठीक है, वो रास्ता जिस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं उस रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। ठीक है, द पाथ along which इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता जिस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। ओके, नाउ वी अगेन रिपीटेड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी is a form of energy made available by the flow of electrical charges through an electrical conductor. Now the next is the electric current. What is the electric current? When electric charges through an electrical conductor and an electric current is produced. When electric charges flows through an electrical conductor, electric current is produced. Now the next is the electric circuit. What is the electric circuit? Electric circuit is the path along which electric charges flows. Electric circuit एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, द पाथ along which इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोज, वो रास्ता, ठीक है, द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता जिस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं उस रास्ते को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट करता है, ठीक है, किस पे? नंबर 1 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? अभी हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर डिवाइसेस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस करती हैं उनको कहा जाता, उन डिवाइसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। और डिवाइसेस कौन सी होती हैं? सेल या बैटरी, सेल और बैटरी। ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स? Those devices which produce electrical charges when electrical conductor is called electrical conductors. Cell and the battery are electrical conductors. Okay, now the next is the wires. Wires मौजूद होते हैं किसी भी सर्किट में। And the third is the electrical components. Now the third is the electrical components. What are the electrical components? Bulb, switch, ammeter, voltmeters, resistors, ठीक है, these are called electrical components, ठीक है, which are used in any electric circuit. Okay, now the types of electric circuits. There are two types of electric circuits, series circuit and parallel. There are two types of circuits, closed circuit and open circuit. Okay, types of circuits, types of circuits. Number 1 closed circuit, open circuit. There are two types of circuits, closed circuits and open circuit. Okay, the circuit in which a continuous flow of electrical charges is called a closed circuit. Okay, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, कहीं ब्रेक नहीं आता, कहीं स्टॉप नहीं आता, इस तरह के सर्किट को कहा जाता है क्लोज सर्किट.
Okay, now the open circuit, the circuit in which there is a break in a circuit. Okay, एक ऐसा सर्किट जिसमें ब्रेक आ जाता है, करंट कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता रहता, उस तरह के सर्किट को कहा जाता है ओपन सर्किट. ठीक है, डायग्राम्स में यहाँ पे दिस इज द क्लोज सर्किट एंड दिस इज द ओपन सर्किट. ये यहाँ पे क्लोज सर्किट को, इस सर्किट क्लोज सर्किट को शो कर रहा है और ये सर्किट ओपन सर्किट को शो कर रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द बोथ सर्किट्स? इनमें दोनों सर्किट्स में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखें, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, ठीक है, जिसकी वजह से करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है और बल्ब ऑन है, बल्ब लाइट है. उसके बाद इसमें यहाँ पर देखें तो इसको, ये है क्लोज सर्किट, द सर्किट, ठीक है, इसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है. एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, करंट कोई स्टॉप नहीं आता, कहीं ब्रेक नहीं करता सर्किट, कहीं करंट फ्लो करने में कहीं ब्रेक नहीं आता, तो इस तरह का सर्किट कहलाता है द क्लोज सर्किट. ठीक है, और अगर सर्किट में कहीं ब्रेक आ जाए, कहीं स्टॉप हो जाए करंट फ्लो होना, तो इस तरह का सर्किट कहलाता है ओपन सर्किट. दिस इज द ओपन सर्किट. ये देयर इज अ ब्रेक इन अ सर्किट, द स्विच इज ऑफ. यहाँ पे स्विच ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे इस वजह से करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है, और सर्किट ब्रेक हो गया जिसकी वजह से करंट कंटिन्यूसली फ्लो नहीं हो रहा. ठीक है, तो इस तरह के ये सर्किट कहलाता है ओपन सर्किट. ठीक है, इस सर्किट में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेल्स यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. दिस आर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. ठीक है, एंड द स्विच एंड द बल्ब्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. यहाँ पे स्विच और बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे वायर्स यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं क्लोज सर्किट. What is the closed circuit? ठीक है, there is a continuous, closed circuit is one, ठीक है, in which there is a continuous flow of electrical charges through an electrical conductor. ठीक है, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, ठीक है, इस तरह का सर्किट कहलाता है क्लोज सर्किट. कंटिन्यूस continuous flow of electrical charges. Now the second is the open circuit. Open circuit, ठीक है, if there is a break in a circuit, this is called the open circuit. अगर सर्किट में कोई ब्रेक आ जाता है, करंट कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता, तो इस तरह के सर्किट को कहा जाता है ओपन सर्किट. There is a break in a circuit. Okay, now the next switch. स्विच, यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है सर्किट में, एक स्विच यूज़ किया जाता है सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए. ठीक है, तो सर्किट जो है, स्विच इज़ यूज टू क्लोज और ब्रेक द सर्किट. स्विच जो होते हैं वो सर्किट को क्लोज या ब्रेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, यूज टू क्लोज, स्विच आर यूज टू close or break the circuit. Okay, clear? Now the next topic is representing simple circuits using symbols. और या फिर सर्किट सिंबल्स. Symbols are used
to represents the electrical components in any electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट्स करने के लिए सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं. These symbols are called circuit symbols और electrical symbols. ठीक है. These are different electrical symbols or circuit symbols of different electrical components. देखिए, these are switch, electric cell, voltmeter, ammeter, galvanometer, fixed resistors, lamp, battery, millivoltmeter, milliammeter, microammeter, resistors, wires, fuse, power supply, bells, and magnetizing coils. These are electrical components which are represented by the electrical symbols. ठीक है, these are the symbols of these electrical components. Clear? ठीक है, this is the symbol of the switch. This is the symbol of the switch. ठीक है, and electrical cell is represented by a symbol of one pair of line. Electrical cell is represented by one pair of line. ठीक है, if we use more than two cells, we use the three pairs of lines. We use three pairs of lines. ठीक है, अगर हम अपने सर्किट में सिर्फ एक सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम सिर्फ एक पेयर यूज़ करेंगे लाइन का, जिसमें जो शॉर्ट लाइन है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करेगी और जो लॉन्ग लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगी. क्लियर? इसी तरह से वोल्टमीटर के लिए V अंडर द सर्किल, एमीटर के लिए A अंडर द सर्किल, गैल्वेनोमीटर के लिए दो तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाएंगे. फिक्स रेजिस्टर के लिए रेक्टेंगल शेप सिंबल यूज़ किया जाएगा, लैम्प के लिए क्रॉस लाइक सिंबल्स यूज़ किया जाएगा. और इसके बाद यहाँ पे ये मिली वोल्ट मीटर का सिंबल MV है. ठीक है, मिली एम मीटर का सिंबल MA है, माइक्रो एम मीटर का सिंबल ये है. इस तरह से यूज़ करेंगे माइक्रो के सिंबल्स के साथ. रेजिस्टर का सिंबल इस तरह से यूज़ किया जाएगा. तो ये तमाम जो सिंबल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम्स के थ्रू. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सर्किट डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट्स किया जाता है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें हमने एक सेल यूज़ किया है, बल्ब और स्विच यूज़ किया है. अब हमें इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो इसमें हमने सेल ड्रॉ किया, बल्ब ड्रॉ किया और इसमें हमने स्विच ड्रॉ किया. ठीक है, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ एनी सर्किट. अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे सेल ड्रॉ करते हैं, बल्ब ड्रॉ करते हैं या फिर स्विच ड्रॉ करते हैं, तो ये एक जो है एक मुश्किल मेथड है किसी भी डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है. तो इसको इजी वे में करने के लिए हम यहाँ पर इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के प्लेस पर जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज इन एनी सर्किट डायग्राम विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो होते हैं वो किसी भी सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं. क्लियर? यहाँ पे अगर हमें सेल है, हम सेल ड्रॉ करने की बजाय यहाँ पर हम इसका जो है यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिंबल यूज़ करेंगे. और इसका सिंबल यहाँ पे देखिए, आप दो सेल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, डबल सेल यूज़ हो रहे हैं. और अभी हमने आपको बताया था जब डबल सेल यूज़ होते हैं तो उसके लिए हम जो है थ्री पेयर ऑफ लाइन यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक सेल ड्रॉ करने की बजाय हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे उसके सिंबल से. क्लियर? यहाँ पर इसके अलावा इसी तरह से ये जो लाइंस हैं ये वायर्स को शो कर रही हैं. ये लाइंस वायर्स को शो करती हैं. इसी तरह से जो वायर्स के साथ कनेक्ट है फिर बल्ब, और बल्ब के प्लेस पर हम यहाँ पे बल्ब का सिंबल यूज़ करेंगे जो लैम्प के लिए दिया गया है. ये है बल्ब का सिंबल. क्लियर? तो यहाँ पर जो है बल्ब की प्लेस पर इसका सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा.
ठीक है, दोनों पॉइंट से कनेक्ट होगा वायर, और फिर इस तरह से आगे जाएंगे तो यहाँ पे वायर कनेक्ट हो रहा है स्विच के साथ, वायर कनेक्ट हो रहा है स्विच के साथ। तो हम स्विच ड्रॉ करने के बजाय हम स्विच को रिप्रेजेंट करेंगे उसके सिंबल से, इलेक्ट्रिकल सिंबल से। तो यहाँ पे स्विच का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है ये। अब हम स्विच को दो यहाँ क्लियर, तो ये हमने स्विच की प्लेस पे यहाँ पे हमने स्विच का सिंबल शो किया है। तो यहाँ पे इस तरह से किसी भी सर्किट डायग्राम को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, तो सर्किट डायग्राम को इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं। क्लियर, इसी तरह से अगर हम जब ओपन सर्किट की सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक सेल की प्लेस पर हमने ज़रा पता सेल का सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने सेल का सिंबल यूज़ किया, वायर्स को लाइंस के थ्रू शो करेंगे, बल्ब की प्लेस पर हम बल्ब का सिंबल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने शो करना है कि स्विच जो है वो ऑफ है। अब दो तरह के स्विच यूज़ हो रहे हैं, एक ऑफ स्विच यूज़ हो रहा है, एक ऑन स्विच यूज़ हो रहा है। अगर स्विच ऑन है तो हम उसमें, अगर स्विच ऑन है तो उसके लिए हमने ये दो सर्कल्स को हमने इस तरह से दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरह से लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो ये ऑन। अगर ऑफ है तो यहाँ पे लाइन कनेक्ट नहीं होगी, उसके साथ अटैच नहीं होगी, बल्कि लाइन जो है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ शो करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑफ। अगर यहाँ पे स्विच ऑफ है, ठीक है, ओपन सर्किट में, फिर हमने यहाँ पे इस तरह से जो है स्विच को शो करेंगे। क्लियर, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज़ करते हुए जो है किसी भी सर्किट की सर्किट डायग्राम ड्रॉ की जाती हैं। तो ये इजी वे होता है किसी भी डायग्राम्स को, सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। द नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज सर्किट। Series circuit. A series circuit is one in which electrical components are connected one after another in a single loop. एक सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी एक से ज़्यादा बल्ब्स यूज़ किए जाते हैं, और ये तमाम बल्ब्स जो होते हैं सिंगल लूप यानी सिंगल वायर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। So the series circuit is one in which electrical components are connected one after another in a single loop. ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंगल लूप के थ्रू कनेक्ट होते हैं। क्लियर, अ सीरीज सर्किट इज वन इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट connected one after another in a single loop. A series circuit is one in which electrical components are connected one after another in a single loop. सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी बल्ब्स यूज़ किए जाते हैं, और ये तमाम बल्ब्स जो होते हैं वो सिंगल लूप के थ्रू कनेक्ट होते हैं लाइक दिस। This is the series circuit, ठीक है, in which electrical components are connected in a single loop. ठीक है, इस सीरीज सर्किट में देखिए एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक ही सिंगल लूप के थ्रू कनेक्ट हैं। क्लियर, तो ये है सीरीज सर्किट
ठीक है, a series circuit is one in which electrical components are connected one after another in a single loop. Clear? Okay, in a series circuit the flow of current is the same. ठीक है, series circuit में flow of current same रहता है. The current flowing through each component in a series circuit is the same. ठीक है, the current flowing in each component of in a series circuit, the current flowing in each component is the same. ठीक है, सीरीज सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में फ्लो होने वाला करंट हमेशा सेम रहता है. यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा है तमाम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में उतना ही जो है करंट पहुंचेगा, उसमें करंट में कोई कमी नहीं आएगी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द पैरेलल सर्किट. The parallel circuit, the circuit which splits into two or more branches is called parallel circuit. एक ऐसा सर्किट जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है उस सर्किट को कहा जाता है पैरेलल सर्किट. द पैरेलल सर्किट इज वन विच splits into two or more branches. The current flowing through each branch in a parallel circuit is less than the current flowing out from the source. ठीक है, the current flowing through each branch in a parallel circuit is less than the current flowing out from the source. यानी पैरेलल सर्किट में सोर्स से जितना करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो ब्रांचेस में जाकर डिवाइड हो जाता है. क्लियर? यानी फ्लो ऑफ करंट सेम नहीं रहता. दो पैरेलल सर्किट इज वन विच स्प्लिट्स इनटू टू और मोर ब्रांचेस. ठीक है, पैरेलल सर्किट इज वन विच स्प्लिट्स इनटू टू और मोर ब्रांचेस. एक ऐसा सर्किट जो जाके दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है पैरेलल सर्किट. ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच इन अ पैरेलल सर्किट इज लेस देन द करंट फ्लोइंग आउट फ्रॉम द सोर्स. यानी सोर्स से जितना करंट आ रहा है वो करंट जाके जो उसकी ब्रांचेस है पैरेलल सर्किट की उसमें जाके वो डिवाइड हो जाता है. तो ब्रांचेस का करंट में फ्लो होने वाला करंट का जो सम होता है वो इक्वल होता है जितना करंट कंडक्टर से फ्लो हो रहा होता है उस. क्लियर? तो यहाँ पर दिस इज़ द पैरेलल सर्किट. देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं 3, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये आने के बाद ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है. दिस इज़ द पैरेलल सर्किट. अब यहाँ से जितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद ये ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पर अगर इसका एक डिसएडवांटेज ये है सीरीज सर्किट का कि अगर यहाँ से सर्किट कहीं से ब्रेकअप हो जाता है तो कोई भी बल्ब लाइट अप नहीं रहेगा, कोई भी बल्ब नहीं चलेगा. ठीक है, फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा. लेकिन पैरेलल सर्किट का एक एडवांटेज ये होता है कि अगर कहीं से सर्किट ब्रेक हो जाता है, अगर कहीं से सर्किट ब्रेक हो जाता है तो फ्लो ऑफ करंट रुकेगा नहीं, फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यू रहेगा और बल्ब लाइट अप रहेंगे, जलते रहेंगे. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक करंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. Okay, the electric current is the measure of flow of electrical charges. Electric current is the measure of flow of electrical charges through an electrical conductor. ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट दरअसल जो है मेजरमेंट है जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट इज द
मेजर ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी मेजरमेंट के रेट को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट इज द मेजर ऑफ rate of flow of electrical charges through an electrical conductor. Okay. What is the electrical current? The measure of rate of flow of electrical charges through an electrical conductor is known as electric current. Electric current. The unit of the electrical current. What are the units of electric currents? Okay, the SI unit of electric current is ampere. Is ampere. ठीक है, and its symbol is capital A. The SI unit of electric current is ampere. Ampere and its symbol is capital A. ठीक है, the different units of small units of electric currents are milliampere, milliampere and microampere. This is the symbol of micro. Okay, microampere. What is the electric current? The measurement of the rate of flow of electrical charges through an electrical conductor is called electric current. Electric current is the measure of the rate of flow of electrical charges through an electrical conductor is called electric current. The unit of the SI unit of the electrical current is ampere and it is denoted by capital A. Milliampere and microampere are the smallest units of electric current. Okay. Ammeter. Now the next topic is ammeter. Ammeter. What is an ammeter? Ammeter is an instrument which is used to measure the electric current in any electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमने मेजर करना है इलेक्ट्रिक करंट को तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है एमीटर. Ammeter is an instrument which is used to measure the electric current in any electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेजरमेंट करंट फ्लो ऑफ करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको एमीटर कहा जाता है. ठीक है, एमीटर इज कनेक्ट इन अ सीरीज इन अ सर्किट इन अ सीरीज वे. ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर हमें एमीटर को कनेक्ट करना है तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के यानी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पर कनेक्ट किया जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पे देखें, यहाँ पे so what is the ammeter? Ammeter is an instrument ठीक है used to measure electrical charges
इलेक्ट्रिक सर्किट। और अभी ठीक है, और एमीटर को हमेशा किसी सर्किट में सीरीज वे में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट इन सीरीज। अगर किसी भी एमीटर को कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में तो इसे सीरीज वे में कनेक्ट करेंगे और हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यानी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पर कनेक्ट किया जाएगा। इस तरह से जैसे यहाँ पे डायग्राम में ये हमारे पास सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर जो है हमने एमीटर इसके पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पर कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी मेजरमेंट शो करेगा ये एमीटर। ठीक है, एमीटर जितना करंट फ्लो हो रहा है वो शो करेगा। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था कि सीरीज सर्किट में फ्लो ऑफ करंट सेम रहता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट सेम रहता है, लेकिन हम क्या है कि अगर सीरीज सर्किट में हम एक से ज़्यादा अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा बल्ब यूज़ किए जा रहे हैं और हमें तमाम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का में करंट, फ्लो ऑफ करंट मालूम करना है, मेजर करना है, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को मेजर करने के लिए हम उसमें जो है एक से ज़्यादा एमीटर कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज़ वे में भी। ठीक है, लाइक दिस, जिस तरह से इसमें ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, थ्री बल्ब यूज़ किए गए हैं, और यहाँ पर हमें इनके इलेक्ट्रिकल चार्जेस को मेजर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 4 एमीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एमीटर 1, एमीटर 2, एमीटर 3 एंड एमीटर 4। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 एमीटर्स को यूज़ किया है। यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक सीरीज सर्किट इज़ द सेम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है, सेम होता है सीरीज सर्किट में, तो तमाम एमीटर्स जो हैं वो सेम रीडिंग को शो करेंगे। तमाम एमीटर्स की रीडिंग्स जो है वो इक्वल रहेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि सीरीज सर्किट में, ठीक है, इन सीरीज सर्किट में हमने कितने एमीटर यूज़ किए, 4, एमीटर 1, एमीटर 2, एमीटर 3 और एमीटर 4 यूज़ किए। और इसमें फ्लो ऑफ करंट क्योंकि सीरीज सर्किट में सेम होता है, इसलिए तमाम एमीटर सेम रीडिंग को शो करेंगे, इसलिए तमाम एमीटर्स की रीडिंग जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, रीडिंग ऑफ एमीटर ए इज इक्वल टू द रीडिंग ऑफ द एमीटर 2, ठीक है, एंड इज इक्वल टू द एमीटर 3 एंड इज इक्वल टू द एमीटर 4। तमाम एमीटर्स जो है वो सेम रीडिंग्स को शो करेंगे। क्लियर। अब हमें जो है एमीटर को कनेक्ट करना है पैरेलल सर्किट में। तो पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हर ब्रांच में एक एमीटर को कनेक्ट किया जाएगा, जो कि हर ब्रांच में मौजूद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा। लाइक दिस, देखिए ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है, ये हमारे पास पैरेलल सर्किट में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से 3 बल्ब मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे अगर हमें इसमें फ्लो ऑफ करंट को मेजर करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हर ब्रांच में एक अलग जो है एक एमीटर को कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एमीटर हमने फॉर एग्जांपल एमीटर 6, एमीटर 7 और एमीटर 8 हमने ब्रांच में कनेक्ट कर दिया। क्लियर। लेकिन मेन इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी मेजर करना है। उसके लिए हम मेन ब्रांच में भी एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, एमीटर 5। क्लियर। तो अगर हमें पैरेलल सर्किट में करंट को मेजर करना है, फ्लो ऑफ करंट को मेजर करना है, तो उसके लिए हर ब्रांच में जो है एमीटर कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा मेन ब्रांच के साथ भी एक एमीटर कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि टोटल करंट को शो करेगा। जितना करंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से फ्लो हो रहा है वो शो करेगा एमीटर 5। ठीक है, एमीटर 5 इन पैरेलल सर्किट। एमीटर 5 यूज किया गया, एमीटर 6 यूज किया गया है, एमीटर 7 यूज किया गया है, एमीटर 8 यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से, वो करंट आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। फ्लो ऑफ करंट डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस में, इसलिए जो ब्रांचेस में एमीटर्स रीडिंग शो कर रहे हैं, जितना करंट मेजर
मेजरमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्लो ऑफ करंट का सम जो है वो इक्वल होगा उस एमीटर की रीडिंग के जो कि मेन ब्रांच से कनेक्ट है, एमीटर 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों, क्योंकि करंट जाके आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए एमीटर 6, एमीटर 7 और एमीटर 8 में जो मेजरमेंट की रीडिंग्स हैं, ठीक है, वो रीडिंग्स इक्वल होंगी किसके, एमीटर, उनका सम इक्वल होगा एमीटर 5 के जो कि कनेक्टेड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे द मेजरमेंट ऑफ एमीटर 6, 7 and 8, ठीक है, द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द करंट ऑफ एमीटर 6, 7 and 8 इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ द एमीटर 5, क्लियर। तो एमीटर 5 इज इक्वल टू द एमीटर 6 प्लस एमीटर 7 प्लस एमीटर 8, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अ सेल और अ बैटरी। Cell and batteries are sources of electrical energy in an electrical circuit. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो सोर्सेस होती हैं वो सेल या बैटरी हैं. These are the electrical conductors. These are also called electrical conductors. Electrical cell or batteries are sources of electrical energy in an electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो सोर्सेस हैं वो सेल या बैटरी हैं. एंड सेल एंड बैटरीज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. ठीक है. what is the battery? ठीक है. Okay, if two or more than two cells are connect in a series, ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो बैटरी फॉर्म करती है. ठीक है. इन अ बैटरी टू और मोर सेल्स आर कनेक्ट इन अ सीरीज. बैटरी में दो या दो से ज़्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं. ठीक है. सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. द करंट फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इन अ सर्किट. किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. ठीक है. द करंट फ्लोइंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव. ठीक है. करंट फ्लोइंग ठीक है. करंट फ्लोइंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. इन अ सर्किट. किसी भी सर्किट में सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ. ठीक है. केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल. ठीक है. सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं बिटवीन द ग्रेफाइट रॉड एंड द पेस्ट ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्लोराइड एंड कार्बन. ठीक है. सेल के अंदर दरअसल एक ग्रेफाइट रॉड मौजूद होती है, इसके अलावा पेस्ट मौजूद होता है मैग्नीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का, जिनके बिटवीन जो है केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं. केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट्स में बनती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिक के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की फॉर्म में किसी भी सर्किट में. इस तरह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है किसी भी सर्किट में. क्लियर. द टॉपिक्स ऑफ दिस क्लास हैज़ बीन कंप्लीटेड. ठीक है. यहाँ पे हमने
अभी तक जो है हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया था. द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो we will continue this chapter till the next video. I hope you have to understand every topic of this chapter. Okay, now note down the homework. Video homework. आज वीडियो होमवर्क में आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जा रहा है. आपने एक सर्किट का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें या तो आप एक सीरीज सर्किट का बना लीजिएगा प्रोजेक्ट या पैरेलल सर्किट का प्रोजेक्ट बना लीजिएगा. और यही प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आपको के असाइनमेंट के साथ भी दिया जाएगा, जिसके मार्क्स रखे जाएंगे. कि तो आपने अपने जब असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो असाइनमेंट के साथ आपने ये प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है. क्लियर? तो यू मेक द model of series circuit और पैरेलल सर्किट. ठीक है, आपने सीरीज सर्किट और या फिर जो है दोनों में से कोई सा एक सर्किट बनाइएगा. या तो आप सीरीज सर्किट बनाइएगा या पैरेलल सर्किट का मॉडल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जब आप अपने असाइनमेंट्स यहाँ पर सबमिट करवाने आएंगे तो उस असाइनमेंट के साथ आपने जो है इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है. उसके बाद नाउ द कॉपी वर्क. नोट डाउन द कॉपी वर्क. ठीक है, यू विल डू ऑल रिव्यू क्वेश्चन. रिव्यू क्वेश्चन number 1 to 10. 1 to 10. ठीक है, from your content solution, from content solution, page number 218 2 and 219. You will do these questions in your copies. ठीक है, you must make the title page of chapter number 10. ठीक है, and the week number 4. ठीक है, you will do all these questions from your content solution of week number 4. ठीक है, and make the index in proper way. We will continue this chapter in our next video class. ठीक है, till then take care and Allah Hafiz.